ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤ ਨਾਮੰ ਸ਼ਰਵਣੰ ਸੁਣੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ ਜਿਨਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ ਜਿਨਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 709 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਦੇਹੋ ਆਸੀਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਗਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਕੁਮਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ।
अज गुरु अर्जन साहब जी ने जेड़े पावन बचन बख्शे ने, धन गुरु अर्जन साहब कहते ने जेड़े मनुख अपनी इस रसना तो परमात्मा के नाम नूं उच्चारण करते ने, जेड़े अपने ना कन्नां नाल परिपूर्ण परमात्मा के गुणां नूं सुणदे ने, ते साहब कहते ने जिन्हां दे हिरदे दे विच अमृत नाम नूं सुन के अमृत भरिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने मैं बलिहार जाना ऐसे गुरसिखां तो जिन्हां ने नाम सुनिया, नाम पढ़िया और नाम ही अपने ध्यान विच टिकाया। गुरु अर्जन साहब कहते ने उन्हां दे ध्यान विच सदा ही परमात्मा रब जी रहिंदा है। वो सच तो कदे दूर नहीं हुंदे, वो माड़े पासे कदे नहीं चलदे, वो अवगुणा दे बीज कदे नहीं बीजदे, वो जहर की खेती का त्याग करके अमृत नूं सिंचते ने। और इहो जे जेड़े गुरमुख प्यारे ने, धन गुरु अर्जन साहब कहते ने मैं उन्हां तो कुर्बान जाना। बचन बड़े प्यारे ने, सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब जी बख्शिश करते हैं। साहब कहते ने रसना उचरंत नामं, जिन्हां ने रसना तो नाम उचारिया बड़ा औखा है साध संगत। ये रसना दे नाल बंदा दुनिया भर दियां चुगलियां करदा है, पर इस रसना दे नाल परमात्मा दे अमृत वर्गे नाम नूं जपने नूं बड़ा औखा लगदा है। कल भी बेनती करदिआं मैं एक बचन किया सी, असल विच कारण की है कि जो कुछ साडी सुरत दे अंदर है, साडी सुरत ओहो जी संसार दे अंदर चीज़ दी भाल करदी है। जे अंदर अवगुण ने, जे अंदर पदार्थां दा रस है, जे अंतरमुखी बंदा इन्हां वस्तुआं ते चीज़ां नाल जुड़िया है, तो ख्याल करियो बाहर मुखी भी बंदा इन्हां चीज़ां दे विचों रस लभेगा। बाबा कबीर साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, उन्होंने 52 अखरी के अंदर जिक्र किया, कहते रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। बाबा कबीर साहब कहते ने मैं जदों रस परमात्मा के नाम अमृत रस नूं जान लिया, पर इनू जानना इन्ना औखा सी क्योंकि इनू जानन दे लई मैनू संसार दे रसां तो निराश होना पिया। भावे कि मैनू संसार दे रसां दा त्याग करना पिया। मैनू समझना पिया भी मेरी स्रोत की है, मैनू समझना पिया भी मेरा बोलना की है, मैनू समझना पिया कि मेरे ध्यान किस जगह ते टिकना चाहिए। जिस दिन मैं अपने मन नूं ये गल्लां समझा लईआं, बाबा कबीर साहब कहते ने उस दिन तो बाद फिर मेरा मन किते भटकिया ही नहीं। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। ए रस छोड़ ओ रस छोड़े, ए रस आवा, ए रस पिया, ओह रस नहीं पावा। जिदन इस रस नूं पी लिया फिर ओ रस चंगा लगा ही नहीं। बस इन्नी को गल है साध संगत, जिन्हें अमृत दा बाटा पी लिया है, जिन्हें अमृत दी बूंद पी ली है, उन्होंने जहर कदे भी चंगा नहीं लगेगा। और उंज हकीकत है साध संगत, जहर किसी नूं भी चंगी नहीं लगती। तुसीं इन्ने बैठे हो गुरु की संगत विच, जे कोई तुहानूं पुछे भी भाई जहर दे प्याले भरे पे ने पीने ने कि एक बूंद अमृत दी पीनी है, तुसीं कहोगे बस एक अमृत दी बूंद दे दे, जहर दे प्याले मैनूं नहीं चाहिए। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते ने जहर दे प्याले पर के ना पी, इस रसना दे नाल परमात्मा दे नाम नूं जप, इन्हां कन्नां दे नाल उहदे नाम नूं सुण, इस रसना दे नाल उहदे गुणां नूं चेते कर और अपनी सुरत दे विच उहदे इन्हां गुणां दा ध्यान धर, अपनी सुरत विच इन्हां गुणां नूं सदा टिका के रख। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने गल चेते रखी, फिर परमात्मा भी तेरे तो सदके ते कुर्बान जाएगा। इन्नी वडियाई गुरु अर्जन साहब कहंदे ने उन्होंने मिलती जिंदा ध्यान गुरु परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता है। साहब फिर ताई अगे बचन कहंदे ने हब कूड़ावे कम इकस साईं बाहरे। हब का मतलब है सारे, कूड़ावे का भावे कूड़े झूठे। पातशाह कहंदे ने एक परमात्मा के नाम तो बिना होर जिन्ने भी काम ने गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने सब कूड़े ने, झूठे ने। हुण इनू थोड़ा जिहा समझण दा यतन करना साध संगत। असल विच असीं जीवन दे अंदर भुलेखा किते खाने आ। ये साडी मानसिकता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा एक बचन जैसरी की वार विच आप पिछे पढ़ के गए हो, जिहड़ा आप जी ने श्लोक पढ़िया सी बसंत स्वर्ग लोकै जित ते पृथ्वी नवखंड ने।
उस श्लोक दे नाल जिहड़ी पौड़ी उहदे विच सतगुर ने जिक्र कीता है, पातशाह कहंदे ने सच यह है कि जदों इहदा मन संसार दे झूठ पदार्थां नाल जुड़ गया, ਜਿਹੜੇ कूड़े सी झूठे सी ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ सच करके मन लिया, ਤੇ ਜਿਹੜਾ सच्चा सी ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ झूठ करके मन लिया। बस इहदी मनोत ते सारी गल खड़ी है साध संगत। जिस दिन मैनू समझ आ गई, तुहानू समझ आ गई भी सच की है ते झूठ की है, इनू ही बाबा रविदास कहते ने, मेरे मालक जी माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा मेरे रब जी भरम कीए। वो कहते ने जिस दिन इन्नी को गल समझ विच आ गई, उस दिन बंदे दा मन किसी पासे नहीं भटकेगा। बस गल समझन दी है कि भरम की, असी भरम विच जी रहे हैं। मैनू माफ़ कर दिया जे, ये पदार्थ भरम ने क्योंकि ये सदा रहन वाले नहीं, ये वस्तुआं भरम ने क्योंकि सदा रहन वालियां नहीं, ये रिश्ते भरम ने क्योंकि सदा रहन वाले नहीं, पर क्योंकि इन्हां नाल बंदे दी इमोशनल अटैचमेंट बन गई। किन्ना चंगा सी जे इन्हां दे नाल नाल इमोशनल अटैचमेंट परमात्मा दे नाम नाल बन जांदी। फिर इन्हें बड़े प्यार नाल बचन कहना सी, गुरु की बाणी दा ये अमृत बोल है, जिन्हों सतगुरु पातशाह कहंदे ने, मेरे मालक जी एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। हुण ये बचन साहिब दी बाणी दे ने। पातशाह कहंदे ने, मेरे मालक जी हुण समझ आ गई, जिन्हों बाबा रविदास जी कहंदे ने कि सतगुर बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कहो रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, परमात्मा दे नाम तो बिना कोई होर काम तेरे आत्मक जीवन विच काम आने वाला नहीं। ध्यान देना, दो बंदे दे जीवन ने, एक बाहरमुखी संसारिक जीवन, एक आत्मक जीवन है। ध्यान देना, संसारिक जीवन असी सारे जी रहे हैं, सानू पदार्थ दिसदे ने, माया दिसदी है, महल माड़ियां नज़र आंदियां ने, इन्हां लई बंदा सारी जिंदगी उदम करदा है, पर असी आत्मक जीवन नहीं जिउंदे। सानू परमात्मा दा आनंद देण वाला नाम नज़र नहीं आउंदा। सच विच जिदन उस गल दी प्रतीत आउंदी है, गुरु अमरदास पातशाह जी नूं 62 साल दी उम्र विच ध्यान आया, उन्हां नूं सोझी आई ते उन्हां ने गुरु दे अमृत नाम नूं अपने अंदर टिका लिया। ते जिदन टिक गया अंदर, उन्हां नूं पुछया उस दिन, धन गुरु अमरदास पातशाह जी सच दसो, खेड़ा किंदे विच, खुशी किंदे विच, आनंद किंदे विच, ये पदार्थां विच, माया विच, वस्तुआं विच, धन विच? धन गुरु अमरदास साहब जी कहंदे ने नहीं। फिर पातशाह किंदे विच? ते साहब कहंदे ने, आनंद आनंद सबको कहें, आनंद गुरु ते जानिया। मैनू आनंद गुरु दे चरनां विचों मिलिया है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहंदे ने, हब कुड़ावे कम इकस साईं बाहरे। गुरु अर्जन साहब जी दा बिलावल राग दा एक शब्द आ पढ़ दिओ, बिन हर काम ना आवत है, जां स्यो राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है। साहब कहंदे ने, कनक कामनी हैवर गैवर छोड़ खिने मैं जावत है। हे बंदिया, ये सब कुछ खिन दा समा भी नहीं, साह अल चलदा, ये सब मिठे ने। जिस दिन साह रुक गया, गल चेते रखियो, अपने ही ने जेड़े चिखा दे विच अग ला के फूक के आंदे ने, कोई दूजा नहीं जांदा। सच है, सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे ने, हब कुड़ावे कम इकस साईं बाहरे, नानक सेई धन जिन्ना पिरहड़ी सच सोए। नानक जी उस धन ने जिन्हां दी प्रीत सतगुरु दे चरनां नाल लग गई, जिन्हां ने अपनी सुरत गुरु दे उपदेश नाल जोड़ीए। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, वो धनता जोग ने, उन्हां दा संसार ते आउणा धन है। वेखो साहब कहंदे ने, रसना नाल जप, कन्नां नाल सुण, ध्यान विच परमात्मा नूं रख। आ तीन गल्लां ने साध संगत। रसना सारा दिन बहुत कुछ बोलदी है, पर इस रसना नूं समझाइए भी ये रसना, तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर तैं कीता, जिचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस पाए पल्ले पीए, हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, ये हर रस करमी पाईए। सतगुर कहंदे ने, गुरु की किरपा नाल जदों इस रस नाल जुड़ जाएगा, फिर इन्हां कन्नां नूं समझाइए, श्रवणों मेरियो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। असल विच साध संगत, धरती नूं असी मां दी संग्या देने आ। सिर्फ एक बेनती तुहाडे चरनां विच, धरती नूं मां दी संग्या देने आ।
ਹੁਣ इस धरती के अंदर अमृत भी उगदा है, इस धरती के अंदर जहर भी उगदी है। ध्यान दिया जे मैं जिहड़ी बेनती करन लगा, इसे धरती के अंदरों अमृत वर्गे आहार बंदा प्राप्त करता है। तो एक गल चेते रखियो, सतगुर ने 5 चीज़ों का जिक्र बाणी विच कीता है। उन्हां विचों 1-2 चीज़ां ऐसियां ने जिन्होंने साहब कहते हैं तुम्मी, तुम्मा, आकत, धूरा, विष, फल। हुण ये सारियां चीज़ां नशे नाल जहर दियां सूचक ने। इसे धरती विचों ये भी पैदा होंदियां ने। सच है, धरती का कर्म है बीजे हुए बीज नूं प्रफुल्लित करना। धरती के अंदर जो बीज पाया जाएगा, मेरी बेनती है साध संगत जी, धरती ने उन्हें ही प्रफुल्लित करना है। जिस धरती के अंदर अमृत पाया तो अमृत प्रफुल्लित होएगा, जिस धरती के अंदर जहर पाया तो जहर प्रफुल्लित होएगा। ये असी सोचना भी असी इस धरती के अंदर बीजना की है। बेनती करते हैं, अज जेड़े बच्चे ये कहते हैं, जिदन मापे बजुर्ग हो जाते हैं, वो कहते हैं इन्हां दी संभाल दा साडे कोल समा नहीं। ख्याल करियो उन्हां नाल घर विच लड़ाई झगड़ा, निक्की निक्की गल ते उन्हां दे नाल लड़ाई करनी। आखिरकार साध संगत, जेड़े बच्चे अपने मापियां नाल लड़ रहे ने, उन्हां दे बच्चे अगों सारा कुछ वेखदे पे ने। उन्हां वेखिया साडे माँ बाप अपने माँ बाप नाल की करदे सन। वो सच विच इस उन्हां दी धरती दे अंदर, उन्हां दी कर्म रूपी दे धरती दे अंदर बीज रहे ने। आप अज इस अवस्था विच ने, कल नूं जिदन आप बुजुर्गी दी अवस्था विच पहुंचणगे, मता मन विच कामना रखण भी उन्हां दे बच्चे उन्हां दी पुछ करनगे। ख्याल करियो, जो अज तुसी अपने मापियां नाल कर रहे हो, कल नूं तुहाडे बच्चे तुहाडे नाल करनगे। ये बीज है साध संगत। इसे करके सतगुर कहंदे ने, इंद इस धरती दे अंदर चंगे बीज लै, रसना नाल जप लै, कन्नां नाल सुन लै, ध्यान सुरत विच रब नूं रख लै। फिर पातशाह जी पौड़ी दे अंदर बचन बख्शदे ने, साहब कहंदे ने, सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा। उन्हां तो मैं सदके जाना मेरे सतगुरु, जेड़े तेरे अमृत गुणां दियां विचारां सुनदे ने, जेड़े तेरे अमृत गुणां दी सांझ पांदे ने। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा। साध संगत, इन्हां कन्नां नाल बड़ा कुछ सुनिया। देखो स्रोत आपो अपनी है। मैं फिर बेनती कर दिया, सुनना साडे ते डिपेंड है। कन्नां दा कर्म सिर्फ सुनना है। इन्हां कन्नां नूं की सुनाना है, ये मेरी ते तुहाडी अपनी मर्जी है। इन्हां नूं सुनाना, एक कन्नां ने थोड़ा कहना भी मैनूं तुसी गीत गंदे सुनाओ जां मैनूं बाणी पढ़ के सुनाओ। सुनाना असी है। इन्हां कन्नां ने की सुनना है, इन्हां कन्नां दी सिर्फ स्रोत है। इन्हां ने सुनना, इन्हां दा कर्म है। पर इन्हां ने जो कुछ सुनना है वो सुनाना साध संगत जी असी है। अज गुरु की गोद विच बैठे हो, निर्णय करके जाओ, गुरु दे चरनां विच अरदास करके जाओ, प्रण करके जाओ भी सतगुर इन्हां कन्नां नूं वध तो वध बाणी और चंगियां गल्लां सुणावांगे। सच विच गुरमुखो, कोई रब दी गल 5 मिनट आ वेखो, संगत आंदी है, मत्था टेकदी चली जाती है। मैनूं माफ़ करना, गुरुद्वारे तो बाहर निकल के कोई सज्जन मित्र प्यारा मिल जाए, उनके नाल बंदा अद्धा घंटा खलो के भी संसार की निंदा ते चुगलियां करता है। रब की गोद विच 5 मिनट बहना भी इनू औखे लगता है। सतगुर कहते ने, मैं सदके जाना उन्हां तो जेड़े सतगुर जी तेरे अमृत गुणां नूं सुनदे ने। पूरे ते प्रधान निवावें प्रभ मथा, वो पूरे प्रधान ने सतगुर जी, निवावें प्रभ मथा, जिन्हां दा मथा गुरु दे चरनां विच टिक जांदा है। तां ही भट्टा ने आख्या सी, गुरु अमरदास पातशाह जी की वडियाई करदे हां। वो कहंदे ने, धन गुरु अमरदास पातशाह जी, सच ये है जेड़े तुहाडे चरनां विच झुक गए, चरण तां पर सके हथ, चरण गुर अमर पवल रहे। वो पैर पवित्र ने जेड़े चल के गुरु अमरदास तुहाडी शरण विच आ गए। चरण तां पर सके हथ, चरण गुर अमल पवल रहे। हाथ तां पर सके हथ, हाथ लगे गुर अमर पै। जी तां पर सके हथ, जी गुरु अमर पनीजै। वो जीवा धन जिहड़ी गुरु अमरदास जी की वडियाई विच जुड़ जाए, वो हाथ पवित्र ने जिहड़े परमात्मा की सेवा विच लग गए। गुरु अमरदास साहब जी की वडियाई करदिआं पातशाह जी कहंदे ने, सकियत सोहियो जित ही बसै, गुरु अमरदास निज जगत पित, सकियत सो सिर जालप पनै, जो सिर निवै गुरु अमर नित। वो सिर पवित्र है,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਹੈ ਸੇ ਹੱਥਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਨੱਖ ਸਿੱਖ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਨ ਕਟਾਏ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪਿਸਨ ਪਿਸਾਏ ਤਾਹੇ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਲੋ ਪਗ ਧਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਰਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਸਮ ਮਿੱਟੀ ਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਪਥਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੱਬ ਕਲੱਬ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਪੈਲੇਸ ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਅਵਗੁਣ ਵਿਆਜਣ ਤੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਦਨ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਰੀਕ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮਨ ਠਣਕਿਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ 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 ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਭਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ